So we were studying Laplace equation. In previous lecture, we talked about maximum principle, uniqueness. So what is this equation? This is Laplacian of u equals to 0 in 2 dimension. Now we study its invariance. This means that if you translate, it is a translation, or you rotate the axis, the equation remains same. So what is a translation? A translation is that is you change, okay. So we define x dash equals to x plus a. So you translate x by this transformation, and y dash equals to y plus b. Then in new coordinate, uh, in new x dash and y dash, you can check that uxx plus uyy, that is equals to ux in new system. So this differential operator remains same, so equation remain same. Okay, so under translation. So this is invariance property, equation remains same. So you can change x in x में कोई भी प्लस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है. Similarly in y, so equation will remain same. Second important invariance is that if you rotate the axis, let us say you have this xy plane, keeping the origin same, so just we have rotated axis with an angle so just rotate with an angle alpha. So this is new coordinate system, and you take any point here. So and you can find relation of ये point P है. So in xy it will be xy, and in rotated coordinate system it is x dash y dash. So you can write a relation between x dash and y dash. And second is a rotation. In the plane through an angle alpha is given by x dash equals to x cos alpha plus y sin alpha, and y dash equals to minus x sin alpha plus y cos alpha. You can easily derive this relation. So what we are doing, so we are just rotating the coordinate axis, keeping the same origin. Okay. So अगर आप P पॉइंट को लिखते हो ज्योमेट्री में अपने, P इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, मतलब P पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस में दैट विल बी आर साइन थीटा. ठीक है. अब न्यू कोऑर्डिनेट में ये बन जाएगा, यहाँ ज्वाइन करोगे, सो एंगल विल बी एक्स डैश विल बी आर cos theta minus alpha, and y dash will be r sin theta minus alpha. अब इसको cos a minus b इनको एक्सपैंड करोगे
तो आपका ये रिलेशन मिल जाएगा। जस्ट राइट पोलर कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है। थीटा तो एंगल आप पूरा ले रहे हो ना, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। सो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इन न्यू कोऑर्डिनेट, देन दैट विल बी साइन कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी को यूज करोगे, एंड देन fit x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, you will get this relation. So origin is same. Okay, so if you shift the origin, that will be the different story. So that is the relation between new and old coordinates. So x dash equal to x cos alpha plus y sin alpha, and y dash equals to minus x sin alpha plus y cos alpha. You have, maybe you have studied in elementary coordinate geometry, rotation of axis. तो अब आपने पहले में तो सिंपल था, जस्ट यू एक्स दो बार डिफरेंशिएट करोगे, इवन एक बार ही करोगे यू एक्स, तो ये यू एक्स विल बी यू एक्स डैश। ट्वाइस करोगे तो यू एक्स डबल डैश यू एक्स डैश डैश विल बी यू एक्स एक्स। बट हियर यू नीड टू कैलकुलेट, एक्स डैश में एक्स और वाई दोनों हैं, और वाई डैश में भी वाई डैश आल्सो कंटेन एक्स एंड वाई। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल। ये कैलकुलेट करना है आपने, and we will see that this will be same as previous one. So just apply chain rule to differentiate using chain rule. What will be ux? Anyone? What will be ux? ux डैश पे जाएगा और x डैश x पे जाएगा, तो cos अल्फा आ जाएगा। फिर u y डैश पे जाएगा, y डैश में भी तो x है, और y डैश पे x पे जाएगा, so you got minus sin alpha. Similarly uy and these sin alpha cos alpha, these are constant. uy dash cos alpha, then differentiate ux again with respect to x, so ux dash cos alpha minus uy dash sin alpha cos alpha, x के सेंस में करना है। फिर आपने करना है इसका डेरिवेटिव x डैश के सेंस में, और यू कैन राइट सिंपली। बताओ क्या आएगा, फर्स्ट इसको करोगे, यू एक्स डैश पे जाएगा, ठीक है, और फिर एक्स डैश एक्स पे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू एक्स डैश वाई डैश पे भी जाएगा, और वाई डैश, अच्छा कॉस अल्फा पहले था तो कॉस, फिर वाई डैश भी जाएगा किसमें, एक्स पे जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म माइनस यू वाई डैश एक्स डैश पे जाएगा, और एक्स डैश एक्स पे, so you got cos alpha. Similarly u y dash पे जाएगा, और y dash x पे जाएगा, माइनस साइन अल्फा पहले था और माइनस साइन अल्फा और आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यू राइट u y y, I'm skipping you, just write in the same way। फिर आप ये लिखना u x x plus u y y,
यू विल सी कि यू एक्स एक्स डैश कॉस स्क्वायर आएगा, ये कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको यू एक्स एक्स डैश प्लस यू वाई डैश, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और जो टर्म है यू एक्स डैश वाई डैश उसका कोफिशिएंट बन जाएगा 0। Okay, so this means that equation will remain same. So this means that if you rotate the axis, you will get same equation. तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक तो आपके पास पोजीशन होता है r और एक होता है एंगल, है ना, थीटा। तो कहने का मीनिंग है कि अगर आप इसको रोटेट, एक्सिस को रोटेट करते रहो, आप यू गो हियर, you go here, you go here, you go here, you will get same equation. यही है ना, आपने रोटेशन किया, आफ्टर रोटेशन this equation remains same. So that's why now we look for the solution in polar coordinate. अब उसका फायदा क्या होगा कि आप हम पोलर में चेंज कर देंगे, बाद में इनवेरियंस प्रॉपर्टी यूज करोगे कि आप इसको, यानी कि अगर रोटेट करोगे तो इक्वेशन सेम रहेगा, मतलब थीटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, एंगल आप कुछ भी लो, वट एवर एंगल यू टेक यू विल गेट सेम इक्वेशन। सो that will make solution easier. By changing polar coordinate you can write solution of this equation very easily. And now we go, अब फर्दर हम लिखते हैं कि हमने सोल्यूशन लिखना कैसे है। तो फर्स्टली आई विल चेंज द इक्वेशन इनटू पोलर by using same chain rule etc. in the similar manner. After writing the equation into polar coordinate, we will look for the solution using separation of variables. That is our next motivation. So इस solution को हम बोलते हैं radial solution, radial solutions of Laplace equation, or you can say conversion of this equation into polar coordinate. So we try to convert Laplacian of u into polar coordinates. और यहाँ पे जो Laplacian है that is second order derivative del 2 by del x square plus del 2 by del y square. So we take x equals to r cos theta and you take y equals to r sin theta. अब या तो आप दोनों वे में कर सकते हो, इधर फाइंड यू एक्स एक्स है ना, यू वाई वाई, चाहे तो आप ये निकालो, चाहे आप पोलर में चेंज कर रहे हो तो पोलर में आप क्या फाइंड करोगे, यू आर आर है ना, यू थीटा एंड यू डबल थीटा, यू कैन फाइंड एनी ऑफ देम, फिर दोनों में रिलेशन निकालना है आपने। सो वी यूज चेन रूल, what will be ur, I am writing ur, बताइए ur क्या होगा, आवाज आ रही है?
what will be UR? U goes on X, X goes on R, U goes on Y, Y goes on R. इसका मीनिंग क्या है? ये चीज है, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव. So you have a ux cos theta plus uy sin theta. Now we'll write urr uxx cos theta plus 2, ये uxy और uyx इक्वल होंगे तो डबल हो जाएगा, sin theta cos theta plus uyy, एक बार sin स्क्वायर बन जाएगा. Just differentiate it again. Then compute u theta ux x theta, एक लिख देता हूँ uy y theta. So u goes on x, x goes on theta. Similarly, u goes on y, y goes on theta. ठीक है, x में भी थीटा है और y में भी थीटा है. So both are function of r and theta. So this will give you minus ux, what will be x curly x by curly theta, that will be minus r sin theta. So minus r sin theta, and this will be r cos theta. Again differentiate this with respect to थीटा. तो ux को करोगे, r में भी करोगे, दोनों को करोगे, ठीक है. थीटा दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करना है, इसको भी इसको भी, और साइन थीटा को भी करना है, कॉस थीटा को भी करना है, बारी बारी से. u थीटा थीटा. सो आई एम राइटिंग फाइनल आंसर, दैट वुड बी r स्क्वायर uxx साइन स्क्वायर थीटा, x के सेंस में करोगे और फिर x को थीटा के सेंस में, है ना. यहाँ पे भी y को x के सेंस में, y को थीटा के. So that will give you minus 2 u xy cos theta sin theta plus u yy cos square theta. अब यहाँ पे cos square sin square आ रहे हैं ना, ये देखो आप यहाँ पे u yy sin square u yy cos square आ गया, ठीक है. u xx sin square u xx cos, I think it is square आएगा ये. तो सिंप्लीफाई हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1. और जो मिक्स डेरिवेटिव है यू एक्स वाई, अब देखो मिक्स डेरिवेटिव यू एक्स वाई यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, एक में प्लस है एक में माइनस है. 2u(xy) साइन माइनस 2u(xy) कॉस, बट यहाँ आर स्क्वायर है तो इसका मीनिंग है कि यू आर आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या यू थीटा थीटा को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना. और यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, सो दिस विल कैंसिल आउट. एंड फाइनल टर्म ये भी आएगा माइनस आर यू एक्स कॉस थीटा प्लस यू वाई साइन थीटा. सो दिस इज यू थीटा थीटा. तो अगर इन टर्म्स को आप ध्यान से देखो, ये यू एक्स, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए ना, हमें तो इक्वेशन में ये अपने यू एक्स एक्स यू वाई वाई निकालना है ना, बाकी सब कुछ गायब होना चाहिए. तो देखो ये बाकी तो मैंने कहा कि यू थीटा थीटा को आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा. और ये टर्म भी एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे. और अगर आप यू आर को ध्यान से देखो, ये यू एक्स कॉस थीटा यू वाई साइन थीटा, यू एक्स कॉस थीटा यू वाई साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल कैसे होगा? यू आर को आर से डिवाइड कर दो. नहीं,
इसको डिवाइड, हाँ क्योंकि आर स्क्वायर से तो आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/r आएगा, ठीक है, तो वहां भी 1/r चाहिए आपको। और जस्ट राइट uxx plus uyy from this relation. Okay, try to write uxx plus uyy. So what I'm going to write, so hence I'm writing ur को 1/r से डिवाइड, r से डिवाइड, और u थीटा थीटा को इससे, तो ये बन जाएगा आपका uxx plus uyy. So this is a polar form of Laplace equation. Okay, so by using polar coordinate r and theta, we write solution. And one more simplification, that if we talk about its rotational invariance, that if u, rotational invariance का meaning क्या है, that if u does not depend on theta, then, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, u x x plus u y y 0 equals to u r r plus 1/r u r. r डिपेंडेंसी नहीं है, so this term will disappear, u theta theta वाला। और ये यानी कि u r r plus 1/r equals to 0 है ये इक्वेशन, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये लिख सकते हो y u r r के सेंस में डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करो, यही आएगा ऊपर वाला। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन r u r इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक बार और इंटीग्रल कर दो, इधर आएगा dr/r log बन जाएगा, सो u इक्वल्स टू c1 log r plus c2, and this is called, this solution is called fundamental solution of Laplace equation. This one. The function log r plays an important role in higher dimension. अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप हायर डिमेंशन में लिखोगे इसको, तो सेम वे में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसी टाइप का फार्मूला। So you can generalize this solution for like 3 dimension, 4 dimension, etc. Okay, so solution does not depend on theta, that is called fundamental solution, and I hope you are able to integrate this one. ये फॉलो कर रहे हो ना ये वाला इंटीग्रेशन, दिस वन, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर यू आर आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 0, इसको ले लिख सकते हो आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, गो बैक, आर का डेरिवेटिव 1 यू आर आर प्लस आर एज इट इज, ठीक है, फिर आर का डेरिवेटिव 1 यू आर इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा आर से मल्टीप्लाई करने पे।
So now we look for solutions. अब इनको हार्मोनिक फंक्शन भी बोलते हैं, लैपलेस इक्वेशन के सॉल्यूशन को. तो we can also say that Laplace equation or harmonic functions in rectangles. That we look for solution in a rectangle. So we solve Laplacian of u equals to 0 in a rectangle. Rectangle domain D. जस्ट लिखने का तरीका है 0A क्रॉस 0B विद बाउंड्री. मतलब ये रेक्टेंगल है आपके पास 0 से लेके A तक, और ये वर्टिकल हाइट 0 से लेके B तक. ओके, सो ऑल ऑर्डर्ड पेयर 0A क्रॉस 0B with boundary as edges of this rectangle. ठीक है, तो ये बाउंड्री है आपकी फॉर लेट अस से एक. ठीक है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, से दिस इज I2, ये इधर बाउंड्री है I3 एंड दिस इज I4. Okay, so you need to solve a Laplace equation with these boundary condition. Okay, तो आप एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सो we can take you can take Dirichlet conditions, you can take Newman conditions, or you can take mixed boundary condition. Mixed boundary conditions. So the solution of given equation can be written as a sum u equals to u1 plus u2 plus u3 plus u4, where each ui solves Laplace equation in the rectangle with vanishing boundary data on all edges except I is 1 2 3 4. अब कहने का मीनिंग है कि देखो 4 प्रॉब्लम बन गई अलग अलग से, आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो इनको. कि मैं पहले u1 सॉल्व करूंगा ये बाउंड्री कंडीशन लेके I1 वाले, और बाकी एजेस पे 0. एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो u1. ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री इस पे लीनियर प्रॉब्लम है. फिर आप सेकंड I2 पे सॉल्व कर लो, बाकी पे 0 ले लो कंडीशन, सॉल्यूशन लिख लो u2. सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कर लो थर्ड बाउंड्री पे, बाकी जगह 0 लेके, एंड 4 पे बाद में सबको ऐड कर दो. दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. एंड यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ बाउंड्री
तो मैं एक सेम ही स्ट्रेटजी है, वी नीड टू अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. So just for an example, uh, let us, for example, let us find u3. Okay, u3 का मीनिंग है solve this problem uxx plus uyy equals to 0 in domain D, rectangle जो भी था, and I am taking डेरिवेटिव वाली कंडीशन ले रहा हूँ. So uy, so uy x0 is some h of x. So uy x0 0, uy xb equals to 0, ux 0y equals to j of y, and ux ay equals to 0. ux 0 y, x 0 है ये, y वेरी इस एज पे. ठीक है, इस एज पे जो है जे वाई है, कोई भी आप y का फंक्शन ले लो, बाकी तीनों बाउंड्री पे वो 0 है. ओके, सो आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑन i3 एंड दिस. अब u3 नहीं लिख रहा मैं इसको, सो u3 u ही है, u कह रहे हैं हम इसको ना, जो जो फाइनल u मिलेगा दैट विल बी u3. So to keep notation simple, I'm just saying this is u. So we apply separation of variables. Separation of variables. That is, you write uxy equals to xx yy. दो बार डिफरेंशिएट कर लो. ठीक है, uyy equals to xy. Given equation PD से uxx plus uyy. So that will give you x double dash y plus xy double dash equals to 0. So from this you got x double dash by x minus y double dash by y equals to, say, lambda. As one side is a function of x and other side is a function of only y, and both sides are independent from each other, so they are constant. Okay, तो दो ओडी सॉल्व करना है आपने. यहाँ पे तो बिल्कुल सेम ओडी हैं. सो टू ओडीज वी हैव. एक तो ये बनेगा x डबल डैश इक्वल्स टू लैम्डा x, एंड सेकंड बनेगा y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा y. Also you need to write boundary conditions for capital X and capital Y. Okay, so firstly I am writing first two boundary conditions. So boundary condition uy x0, यानी कि x y के सेंस में डेरिवेटिव करोगे y डैश आ जाएगा, देन फिर y इक्वल्स टू 0. So this will give you y dash 0 equals to 0. दूसरी बाउंड्री कंडीशन uy at xb. So this will give you y dash b equals to 0.
ठीक है, तो पहले y वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो वी सॉल्व y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0 विद these two boundary conditions. Okay, so y dash 0, y dash b equals to 0. We solved this problem many time in previous chapter, if you remember. करा था ना हमने न्यूमन कंडीशन के साथ। So just I am writing just answer, the eigen values and eigen functions. इसमें cos आएगा, अगर डेरिवेटिव नहीं होता तो साइन आता, एंड आइगन फंक्शंस आर, आइगन वैल्यू आएंगे इसमें n पाई बाई बी, एल की जगह बी है यहाँ पे, एंड दिस इज cos n पाई y बाई एल, एल की जगह बी आ जाएगा। इसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा, डेरिवेटिव में एक 0 के लिए मिलेगा कांस्टेंट और बाकी 1 2 3 के लिए, एंड यू कैन कंबाइन, cos 0 1 होता है तो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज a standard article, no need to solve many times, just you can use directly. Okay, लिख देना कि थोड़ा सा कि नीमन प्रॉब्लम है, सो आइगन वैल्यूज आर दिस एंड आइगन फंक्शंस आर दिस। ओके, तो अब x वाली इक्वेशन पे जाते हैं। x वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? अब देखो y में तो देखो y ये था है ना, y में तो कंडीशन सिंपल है 0 0, बट x में when x equals to 0 you have jy, नॉन जीरो कंडीशन है आपकी। दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व फर्स्ट फॉर y, जो सिंपल हो उसको पहले सॉल्व कर लो। सो वी हैव लैम्डा, अब लैम्डा कौन से हैं? 2 लैम्डा है आपके पास, एक 0 है और एक नेगेटिव है। तो जब लैम्डा 0 फिट करोगे x वाली इक्वेशन में तो x डबल डैश विल बी 0। तो जो इसका सोल्यूशन आएगा, 2 बार इंटीग्रल कर लो, आई एम राइटिंग इट a0/2, सोल्यूशन को भी आप x0 लिख सकते हो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये a0/2 कन्वीनियंस के लिए लगाया है, आप a0 भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर। फॉर लैम्डा एंड बाकी जो वैल्यू है n पाई बाई बी, इसके लिए x डबल डैश इक्वल्स टू n पाई बाई बी स्क्वायर x, इसको सॉल्व करना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा, an e n पाई x बाई बी प्लस bn n पाई x बाई बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो आप लिखते थे r² माइनस दिस वन इक्वल्स टू 0, तो 2 रूट मिलेंगे आपको, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में सॉल्यूशन। नाउ वी यूज बाउंड्री कंडीशंस। नाउ बाउंड्री कंडीशंस, ux ay इक्वल्स टू x डैश a y इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा x डैश a इक्वल्स टू 0। ux ay वाली जो कंडीशन थी, ये वाली सिंपल वाली यूज कर रहा हूँ पहले, ये लास्ट वाली। ठीक है,
सो दिस इम्प्लाई एक्स डैश ए इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट में फिट कर दो इसमें, ठीक है। व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए, सोल्यूशन का डेरिवेटिव कर लो पहले इसका। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स डैश क्या आ जाएगा, b0/2, ये आएगा डेरिवेटिव। तो उसका मीनिंग b0 आ जाएगा यहाँ से। सो दैट इज दस, तो फर्स्ट होगा x0 डैश at a equals to 0. This implies b0/2 equals to 0. So this implies b0 equals to 0. दोनों दोनों में फिट कर दो। दोनों केस है ना, दो केस हैं, एक ये डेरिवेटिव करके। फॉलो कर रहे हो? से यस और नो। यस सर। ठीक है, फर्स्ट जो सिंपल वाली कंडीशन दोनों में यूज करना है। इसका सेकंड का डेरिवेटिव करो, एक्स डैश इक्वल्स टू ए एन एन पाई बाई बी बार आ जाएगा, ई की पावर एक्स तो सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फिर आपने x को a फिट कर देना, ठीक है। सो ऑन नेक्स्ट पेज आई एम राइटिंग सेकंड। तो सेकंड क्या देगा, सो x, उसको मैंने xn लिखा, xn डैश a इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स an n पाई बाई b e पावर n पाई b बाई a माइनस bn, ये डेरिवेटिव करने से आएगा। बाद में x को a फिट कर देना आपने, n पाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, n पाई a आएगा ना, b तो नीचे था, n पाई x को a फिट करना है। तो यहाँ से आपको आज मिल जाएगा n पाई बाई बी है, इसको कॉमन लेकर आप छोड़ सकते हो। सो बी एन इक्वल्स टू ए एन, और बी एन और ए एन में रिलेशन पता लग गया। ईदर सॉल्व फॉर बी एन और ए एन, ओके। सो देयरफॉर जो एक्स एन एक्स बनेगा, तो ए को आप कॉमन ले सकते हो, बी एन को आप ए एन की टर्म में लिख सकते हो, एन पाई एक्स बाई बी एन की जगह ए एन टू एन पाई ए बाई बी, ये लिख दो आप, एंड देन टेक कॉमन ए एन, सो ई पावर एन पाई एक्स बाई बी प्लस ई की पावर माइनस एन पाई बाई बी, कॉमन कर देता हूँ इनको, एक्स माइनस 2a। सो फाइनली सोल्यूशन, जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा यू एक्स वाई, अब वो कैसे लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल यही था। फिर यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देन सम अप, मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर 1 to infinity, ऐसे ही करते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, एन पाई एक्स, तो x हो गया है, y से मल्टीप्लाई करना है, y आप एन पाई एक्स बाई बी, एन पाई बाई बी एक्स माइनस 2a, ठीक है। ये तो आपका हो गया, सॉरी x वाली वैल्यू है ना, और इसको मल्टीप्लाई आप किससे करना था आपने, y, और y वाला सॉल्यूशन क्या था, cos n पाई y बाई बी। इसमें भी साथ में कांस्टेंट आएगा, आप कांस्टेंट कुछ सी एन लिख लो, बट कांस्टेंट ये आप कंबाइन कर सकते हो दोनों कांस्टेंट्स को, ठीक है। तो कांस्टेंट एक में लिख लो, एक में लिखने की जरूरत नहीं है। और जब इससे इससे मल्टीप्लाई होगा cos 0, वो 1 ही है, सो नो नीड टू राइट, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 to infinity, साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई हमने कर दी, x और y। अब फाइनली एक चीज बचा है अब आपके पास, अब सेकंड बाउंड्री तो यूज नहीं किया ना हमने, सुनाओ ux 0y, जो मैंने लिखा था j ऑफ y,
अब इसको यूज करके आप ए एन निकाल लोगे। सेम है, यहाँ पे भी सीरीज बनेगा। सो समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, डेरिवेटिव करोगे एन पाई बाई बी 1 माइनस ई पावर 2 एन पाई ए बाई बी कॉस एन पाई वाई वाई रहेगा, एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट इट। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के सेंस में, तो इसका डेरिवेटिव लिखना है आपने, बाद में एक्स को 0 फिट कर देना है, तो e की पावर 0 1 आ जाएगा। जब डेरिवेटिव करोगे तो एन पाई बाई बी बार कॉमन आ जाएगा ए एन के साथ। जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन फिट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये कॉफिशिएंट जो बने, अब कॉफिशिएंट क्या है, कॉस के साथ कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, ये फूरियर कॉफिशिएंट निकाल लोगे आप। कॉस के साथ जो आ गया वो कॉफिशिएंट है, दिस इज फूरियर कॉफिशिएंट। देयरफॉर जो ए एन कॉफिशिएंट है एन पाई बाई बी और साथ में 1 माइनस दिस इज 2 एन पाई ए बाई बी, दिस कॉफिशिएंट इक्वल्स टू, मैं सम जे एन लिख रहा हूं, तो यहां से जो ए एन की वैल्यू आएगी जे एन डिवाइड बाई 1 माइनस 2 एन पाई ए बाई बी, और यहाँ पे एन पाई बाई बी आ जाएगा। और जो जे एन फूरियर कॉफिशिएंट जे एन की वैल्यू क्या होगी, 2 बाई एल 2 बाई बी 0 टू बी जे वाई का कॉस एन पाई बी के साथ इनर प्रोडक्ट एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू एटसेट्रा। इनर प्रोडक्ट मीन्स इंटीग्रल। ओके, सो दिस इज फूरियर कोसाइन कॉफिशिएंट। कौन सा है, फूरियर कोसाइन कॉफिशिएंट। क्यों लिखा है, क्योंकि ये फूरियर कोसाइन सीरीज बन रहा था ये। Okay, so you can write Fourier coefficient. So finally we have solution. So finally u x y इक्वल, मैं दोबारा लिख देता हूँ, so this is a0 by 2 constant solution है, then n equals to 1 to infinity Fourier coefficient jn डिवाइड बाई 1 माइनस e, जो an की वैल्यू है, an की वैल्यू, ये an का वैल्यू है। ओके, सो दिस इज an होल an। ठीक है, और an के साथ क्या आ रहा था, e की पावर n पाई x बाई बी प्लस e की पावर माइनस n पाई x माइनस 2a डिवाइड बाई b एंड मल्टीप्लाई बाई cos n पाई y बाई b, and this is the final solution of Laplace equation. So we have just written solution using Cartesian coordinate, x y में लिखा है अभी हमने। Okay, so that was boundary value problem. So in fact this is u3 जो हमने कहा था ना, दिस इज u3 थर्ड था, एक इस एज पे सॉल्व किया है हमने, बाकी फिर आपने इस पे भी सेम वे में सॉल्व करना है, इस पे भी सॉल्व करना है, और इस पे भी सॉल्व करना है, and add 4, you will get final solution by adding all these. Okay, so that involve many calculation, but you may have different condition. अगर सेम कंडीशन है फिर तो आप इस एक को देख के लिख दोगे कि ये सेम, इस पे कंडीशन क्या था, न्यूमन था, इस पे भी न्यूमन है, इस पे भी न्यूमन, इस पे भी, तो सेम वे में जस्ट आपने
ए बी को रिप्लेस करना पड़ेगा, यू विल गेट सेम सोल्यूशन। बट सम प्रॉब्लम्स आर टिपिकल वन, उसमें है कि इस पे न्यूमन है, मान लो इस पे भी न्यूमन है, इस पे ड्रिचले है, तो फिर वो अलग बनाना पड़ेगा। इस पे मिक्स्ड है, मिक्स मतलब एक उसने कह दिया कि u इक्वल्स टू समथिंग, एक उसने कह दिया ux इक्वल्स टू समथिंग, सो यू मे हैव मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, बट डोंट वरी, वी विल आस्क ओनली वन। तो जब आपने वन सोल्यूशन फाइंड करना है, टेक अदर बाउंड्री कंडीशन है 0, ओके, सो जस्ट कंसीडर बाउंड्री कंडीशन ऑन दैट एज ओनली, उसी एज पे लेनी है बाउंड्री, बाकी पे आप, बाकी इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, सब पे 0। So this is the final formula, and you can use directly in problems. इसको अपने you may memorize, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, you can, अगर सेम कंडीशंस हैं, you can just use direct formula, ठीक है, सेम कंडीशन अगर है, अगर सेम नहीं है then you have to derive।